So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for geography. I hope this session is going to be very fruitful for all geography teachers. And my colleague is in front of me, right? Kavita. Yes sir. Kavita is from Gurugram. Yes sir. That's great. Kavita, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा यहाँ पर ललिता से. She is from Alwar, right? And next Manju. Hello. She is from Haryana. Jhajjar, right? Yes, sir. Or next boy, he is from Bihar, okay, and he has also cracked Yes. NBS, Yes. same like you, and his name is Gorak, Yes, sir. okay. So, are you comfortable with asking questions? Yes sir. Okay, तो आप ज्योग्राफी के, तो मैं आपसे आज ज्योग्राफी के बहुत से क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो आप कंफर्टेबल रहेंगी बताने के लिए? Yes sir. चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, टेल मी अबाउट इंडियाज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंशन. Yes sir. Firstly, I will tell you India is a subcontinental figure, and its location is started from 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. Okay. It's India's latitude extension and longitude extension is 68 degree to degree 7 minute to 97 degree 25. ओके, एंड एपिसेंटर क्या होता है मैडम? Epicenter is the point on the surface which is exactly directly above the focus. Okay. And where energy reach first. ओके, सबसे पहले जहाँ पर एनर्जी पहुँचती है फोकस के डायरेक्टली अबव जो पॉइंट होता है सरफेस पे, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं. और फेजेंडा? Fazenda is a cropping system. It is established in Brazil. Okay. And it's a cropping of कहवा. स्पेशली कहवा के जो खेत होते हैं, जो बागान होते हैं, उनको फेजेंडा कहा जाता है. ओके, और बॉडी वेव्स क्या होता है कविता? सर, बॉडी वेव्स इज जनरेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, and these type of waves can pass through the all materials in interior of the earth. It can pass solid materials, gaseous material and liquid material. Very good. So Manju, any question you are having in your brain, you can. Yes, sir. So tell me about why you want to be a teacher. Ma'am, as you know that teacher is a noble profession, and that shapes the character, caliber and future of an individual. Right. I regard and respect this profession from the bottom of my heart, and here we get an opportunity to build career of various aspirants and those who is in search of knowledge. Right. If people remember me a successful pedagogue, it will be biggest honor for me. Definitely, you will be regarded if you are Yes. going for such a noble profession. Jesus. Here I request Lalita also from Alwar. Lalita, you can have your question, please. What are the qualities of a good teacher? Yes ma'am, the quality of good teacher is aware of his responsibilities. He should be command on his subject. He should be aware for his duties, and he must understand the psychology of a student. A teacher work does not finish only teaching and giving homework. The Right. highest work which makes a good teacher is when he aims at making a good human being, inculcate values and boost morals in student. Right. Morale बहुत जरूरी है. Yes, Gorak, you can also from Bihar. Yes, you can ask questions. Please tell me something about your family. Okay sir, we are 5 members in our family. My father-in-law is a head of family, and my mother-in-law is homemaker, and my husband is working in MNC company, and we are blessed with a loving angel son who are studying in 7th standard. Okay. कविता शर्मा, sedimentary rocks क्या होते हैं? Sir, sedimentary rocks means which is accurate form by sediment. Sediment word is come from the Latin. Exactly, it is sedimentum. Okay. Sedimentum means अवसादों से बनना. Like deposition. रिवर से पानी बहता हुआ आता है, और आते आते वो अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आता है, और वो जमते 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 एक लेयर बन जाती है, और वो ही क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स, और उसे हम अवसादी चट्टानें भी कहते हैं. Okay. और वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग मीन्स रॉक्स का अपनी जगह पर टूट जाना. Okay. ड्यू टू फिजिकल और केमिकल रिएक्शन. Physical reaction like that in the desert area, in rocks
जब रातें ठंडी हो जाती हैं उस टाइम उन रॉक्स की जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर पानी घुस जाता है, लेकिन जब दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका वो क्रैक्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वो रॉक्स होती हैं अपनी जगह पे टूट कर चूरा हो जाती हैं, उसको ही हम वेदरिंग कहते हैं। Okay. Tell me erosional landforms made by running water. यस सर, जब पानी बहता है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आता है। Okay. अब जब जो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, जो उसकी प्राइमरी स्टेज होती है, उसके अंदर वो काटना शुरू करता है, वो वर्टिकल इरोजन करना स्टार्ट करता है। एक रिवर जब माउंटेन से फ्लो करके आती है तो वो उसको वर्टिकल कट करती है, और वर्टिकल कट के कारण उसमें वो गोर्ज बना के चलती है, कैनियंस बनाती है, और उसके अंदर वो वाटरफॉल्स बनाती है। वाटरफॉल्स का जो वाटर होता है जब वो नीचे सरफेस पे गिरता है तो वो एक वहाँ पर ड्रिल कर देता है। ड्रिल उसको हम पूल्स कहते हैं। Okay. उसके बाद जब वो प्लेन में आने के बाद वो एक मींडर बना के चलती है। मींडर मीन्स वो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना कर चलती है, उसको हम मींडर कहते हैं। मींडर्स बनाती हैं, उसके बाद टेरेंस बनाती है। ये सारी जो लैंडफॉर्म्स है वो रिवर अपने इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्रिएट करती है। What do you mean by the word atmosphere? एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड Composition बता सकते हैं क्या-क्या है इसमें? yes sir, I can tell mixture composition of atmosphere is water vapor, Agreed. gases, dust, particle of dust, which is helpful for spread the light. Okay. Of light we get from the sun, and the color of skies is due to blue due to dust particles. Right. Clouds कैसे बनते हैं? Can you tell me? Yes, Mrs. sir. Kavita? Clouds is a mass of minute water droplets or ice foam which is condensed and the high and free air in higher atmosphere. Okay. Can you tell me what do you mean by the word tide? T-I-D-E. Yes sir. Tide means the periodically rise and fall of water is Right. called and due to attraction of sun and moon is called tide. And physical climate weather, physical conditions like temperature, winds के कारण जो पानी उठता है, हमने नोटिस भी किया होगा, हम कभी जाते हैं, हमने बीच पे या समुद्र में देखा है, जो हवा के कारण या टेम्परेचर के कारण जो पानी ऊपर उठता है नीचे उठता है उसको हम सग्स कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट अबाउट टाइड, एंड टाइड में जो पानी का जो राइज एंड फॉल होता है वो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून एंड कंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। Okay. Can you tell me tide related to navigation, how it is? Yes, tide relative to it is very helpful to navigation because tide की navigation जो वो उसको जल्दी लेके जाते हैं, स्लो जो जैसे उसकी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं लेकिन टाइड के कारण उस डायरेक्शन में प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो हम उसकी तरफ निकल जाते हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में भी जाना पॉसिबल हो जाता है इसकी वजह से, टाइड्स की वजह से। Okay. Tell me the type of biomes. Biomes are we can divide differentiately according to largest animal and plant species. Okay. इसके अकॉर्डिंग लाइक दैट इन द रीजन ऑफ 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, इन दिस बायोम द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस गेट टेम्परेचर ऑल ओवर ईयर, हाई टेम्परेचर सारा साल इसको सारा टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, तो इस कारण यहाँ पर जो बारिश है, जो रेनफॉल होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बिकॉज कन्वेंशनल रेज होती है, अर्थ जो हमारी ये होती है वो हीट हो जाती है, हीट होने के बाद जो एयर है वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद कंडेंस हो जाती है और वहाँ पर रोज़ 2 बजे के बाद बारिश हो जाती है, तो इस वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही गहरा पाया जाता है, वहाँ पर पूरे फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिन्हें हम सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। Right. तो लाइक दीज अपर इन मिडल लैटिट्यूड्स 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ हम बात करते हैं,
तो उसमें क्या होता, उसमें घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का बायोम नहीं पाया जाता। अगर उस बायोम में डिफरेंट स्पेसीज मिलती है, इस बायोम में डिफरेंट स्पेसीज मिलती है, तो दैट्स वाई वी कैन डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। ओके, आप इकोलॉजी से क्या समझते हैं? इकोलॉजी मीन्स लिविंग different species and different biodiversity in get together. Okay. Can you name the eco-sensitive zones in India? Yes sir, it is Motheron in Pune. क्यों बोला जाता है इको सेंसिटिव? क्या? Because there is you can listen. You have listened Silent Valley name in Kerala. It is specially नॉन बायोडाइवर्सिटी, स्पेशल बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को बना के रखने के लिए ही उसे इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है कि वहाँ पर उनकी बायोडाइवर्सिटी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। वो जो स्पीसीज है वहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जा सके। वेरी गुड। और बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट स्पीसीज एंड जेनेटिक वर्टिकली स्पीसीज आर एंड डाइवर्सिटी इकोसिस्टम are get found together is called biodiversity। यानी एक ही हमारी इसके हमारी विविधता के अंदर बहुत सारी प्रजातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहा जाता है। ओके, एक्सोटिक स्पीसीज क्या होता है? एक्सोटिक नहीं आइडिया आपको? कोई बात नहीं, आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। एयर मास से आप क्या समझते हैं? एयर मास इज अ बॉडी ऑफ एयर ऑफ which temperature and relative humidity characteristics are same in horizontal layers up into 100 to 1000 किलोमीटर। ओके, 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक के बीच में किसी भी बॉडी मास की अगर विशेषताएं हॉरिजॉन्टली जो विशेषताएं हैं वो सेम रहती है तो उसको हम एयर मास कहते हैं। वेरी गुड। ललिता, इनके नॉलेज के लिए क्या कहोगे? सर बहुत अच्छा नॉलेज है। मंजू, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज? Okay, now tell me about your strengths. Okay ma'am, my strengths are that I am an optimistic, honest and hardworking and punctual personality. I also a team spirit person and I don't try to hog all credits. That's great. What do you understand by aurora? Aurora is a multicolor light which appears in a ionosphere layer in the atmosphere. It is especially occurs in mid latitudes. Okay. And biomass means? Biomass means where Can you elaborate little bit? कुछ आइडिया है आपको बायोमास से? yes sir, नो प्रॉब्लम, विल सर्कल इट। आप इस टॉपिक को गो थ्रू कर लीजिएगा। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे देश के अंदर बड़ा यूनिक है और लोग इस पर बहुत चर्चित चिंता व्यक्त करते हैं। कुछ करना चाहिए हमको, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। Yes sir, global warming is that the average temperature is increased due to condensation of various harmful gases. Like that concentration of carbon monoxide, carbon dioxide is a hazardous gases is more than concentration in atmosphere. There is a limitless concentration is useful to us, but when the concentration is more than in atmosphere, then increase that average temperature of earth. That's why glacier has become to melt, and it's a very it's a very big problem for us in future. Okay. ये गुरुग्राम से आई हुई लेडी तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई हमारे बीच में, नॉलेज वाइज तो इसने बहुत अच्छा ग्रैस्प कर रखा है भाई। कितने परसेंटेज आए थे आपके एमएससी ज्योग्राफी? यस सर। कितने परसेंटेज? 62% मार्क्स। फर्स्ट रीजन से आपने अपनी मास्टर्स करी है। कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ इंसुलेशन? यस सर, इंसुलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इट मीन्स सूरज से आने वाली किरणें, इनको हम इंसुलेशन कहते हैं। डू यू नो अबाउट thermocline? Yes sir, thermocline is a boundary in the oceanic water bodies which divide the vertical temperature of water. Okay. It's known as thermocline. Very good. Who describes the plate tectonic word? Yes sir, this word is described Tuzo Wilson in 1965. उन्होंने बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारी प्लेटों में डिवाइड्स है,
जिसके अंदर 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। जो बड़ी प्लेटें हैं और जो छोटी प्लेटें हैं वो क्रस्ट के नीचे मैंटल के ऊपर तैर रही हैं। तो जिसके कारण जो मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स के कारण ही हम देखते हैं बहुत सारे जो परिवर्तन है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर होते हैं, लाइक अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, नए महासागर बनने, महाद्वीपों का बनना, महासागरों का कोई हिस्सा डूब जाना, लाइक अभी एक न्यू मेरे द्वीप इन बे ऑफ बंगाल वो अब डूब चुका है। ओके। हाँ। कैटाबेटिक विंड क्या होता है? कैटाबैटिक विंड इज नॉन ब्लोइंग विंड डाउन स्लोप ऑफ ए माउंटेन के स्लोप से जब हवा उतरती है तो उसको हम कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज दैट व्हेन incoming solar radiation is come on the earth, and earth begin to warm, but when earth begin to warm it release to long radiation. Yes. That's known as दीर्घ विकिरण in Hindi. उसको हम दीर्घ विकिरण कहते हैं। That long radiation cannot pass through the atmosphere, so our atmosphere become warm and this called the green house effect, कि हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है वो गर्म हो जाता है, उससे बाहर हवा जो हमारी जो रेडिएशन है वो जा नहीं पाती, हमारी जो गैस जो हमारा पृथ्वी है वो एक कांच का घर बन जाती है। तो इस वजह से हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये वर्ड बड़ा कॉमन है, राइट? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ। ज्योग्राफी में एक वर्ड होता है हॉट स्पॉट। यस ये क्या होता है? हॉट स्पॉट मीन्स वो एरिया होता है जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो स्पेसिफिक पाई जाती है। ओके। और वो उस हॉट प्लेस को यूनेस्को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल करती है। उसमें जो स्पीसीज हैं उनको अपने अंडर रखकर उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनको बचाया जाता है। ओके। फूड वेब से आप क्या समझते हैं? Food web is a interconnection of food chains, and it define that what is eat and who eat and कि इसमें कौन किसको खाता है। कि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकंड कंज्यूमर होते हैं, दैट्स इट्स नोन एज फूड वेब। Okay, how many layers in interior of Earth? Can you tell me? Yes, sir. There are 3 layers interior of Earth. Name them. Upper layer is known as crust. Its thickness is equal to 5 km to 100 km in oceanic, and continental is 200 km. And second layer is known as mantle. Mantle's length is 200 km to 900 km, and its density is equal to 3.0 to 3.4 gram per centimeter cube. And the last inner layer of Earth is core. It is formed by purely metallic, and that's why its gravitational force is more than crust. Its density is equal to 11 to 13 gram per centimeter cube, and its depth inner core is equal to established in 6,371 kilometer. वंडरफुल, वेरी गुड नॉलेज, राइट? सो अप्रिशिएबल। और मैं चाहूंगा आपसे कि आप गुरुग्राम से इतनी दूर हमारे पास आए तो सक्सेस जरूर होना है, राइट? एनबीएस में सिलेक्शन जरूर कराना है, राइट? दिस इज मैंडेटरी। मंजू, इनके बारे में आपकी क्या राय है, इनके आंसर्स वगैरह देखकर, इनका नॉलेज देखकर? सर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। Okay. शी हैज command on her subject. Okay. And she is having enough confidence. ओके। एंड बिहार बॉय की क्या राय है इनके लिए, Yes, sir. इनके नॉलेज के लिए? नॉलेज सर अच्छा है। ओके। और कॉन्फिडेंस भी है। तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इस नॉलेज को आप मेंटेन रखें, Yes, sir. और इसको बताने की एक्सेंट्स वगैरह वे आप इसको डेवलप करते रहें, राइट? sir. और जितनी भी आंसरिंग्स है उसके ऊपर अपनी इतनी कमांड होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट डेफिनेटली विल गेट इंप्रेस्ड फ्रॉम यू। और एनबीएस में आपका 100% सिलेक्शन हमें चाहिए, राइट? Yes, sir. और आपको पीटी क्लासेस पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। बहुत मोटिवेशनल लग रहा है। राइट। आप होल्ड स्टडी करते हो तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं सर, वी आर वेरी कोऑपरेटिव। और मैं आप लोगों के लिए कई बार स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ तो आपको फीलिंग नहीं आती है सर हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो गए? नहीं सर, हमें लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। ओके, मतलब डांट खाना भी नया सीखना Yes, होता sir. है। ठीक है, तो मैं बेस्ट विशेष टू यू, विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। थैंक यू।